Hello everyone. So today we are here with the solution of exercise 3.1 NCERT on matrices. आप लोगों ने अभी तक सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 देख लिया हूँ. Now on that basis we can easily solve this exercise. This is about introduction of matrices, order of matrix, types of matrices and equality of two matrices. क्लियर. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये आपको हेल्प करता है then please like it, share it and subscribe the channel to get further notifications. आगे भी मैं आपके लिए और एक्सरसाइजेस लेके आता रहूँगा. ठीक है. So let's move on to question number 1. First, this is exercise 3.1 of NCERT. Total there are 10 questions. Not very tough. So let's start. Question number 1. एक मैट्रिक्स गिवन है हमको. एक मैट्रिक्स गिवन है. This is order of this matrix is 3 rows, 4 columns. So 3 by 4. Now what we have to find? The order of the matrix. So order of the matrix is simply this is 3 by 4. The number of elements, how many number of elements are there? Number of elements is equal to number of elements is, we know if order is 3 by 4, number of elements is product of 3 and 4, that is 12. Now write these elements. A13. A13 का मतलब क्या है? First row and third column. This is the element in first row and third column, that is 19. Next, A33. This is element in third row, third column. So this is -5. A24. This is element in second row, fourth column. So it is 12. And A23 element in second row, third column. Second row, third column. So this is 5 by. Clear? Got it? Okay. Next, question number 2. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? So 24 elements total. अब देखो यहाँ नंबर ऑफ रोज लेते हैं, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स लेते हैं और ये टोटल एलिमेंट्स लिख लेंगे. ठीक. तो अगर हम नंबर ऑफ रो 1 लेते हैं, the number of columns must be 24, so that 1 by 24 will be equal to 24. तो एक ऑर्डर तो ये हो गया 1 by 24 की रो 1 हो और कॉलम्स 24 हो. अगर आप नंबर ऑफ रोज 2 लेते हैं, then number of columns must be 12, so that 12 into 2 will be 24. If we take 3 number of rows, then number of columns must be 8. So that 8 into 3 will be, total number of elements will be 24. If we take 4 rows, then in each row there will be 6 elements. That is 6 columns will be there. 5 हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने 5 लिया तो कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके 24 आएगा. 6 into 4 is again 24. So this will be a different order. 7 हम नहीं ले सकते, 7 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके we will not get 24. 8. If 8 rows will be there, there will be 3 columns. So again the result is 24. 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 11 भी नहीं, 12. 12 into 2 is 24. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Directly 24. 24 into 1 is equal to 54.
तो इतने डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। 1/24 का ऑर्डर मैट्रिक्स हो सकता है, इसमें 24 एलिमेंट्स हो, 2/12 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल? सो टोटल 8 different orders are possible. Clear? अब हमसे कहा गया इसी में सेकंड पार्ट है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब अगर 13 एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर मैं एक रो लेता तो कॉलम कितने लेने पड़ते? 13, सो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 13। 2 हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 का प्रोडक्ट किसी भी नेचुरल नंबर के साथ 13 नहीं हो सकता। 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ नहीं ले सकते, डायरेक्टली हम ले सकते हैं 13/1 ऑर्डर। सो इन दैट केस टू डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल। सो अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 8 आंसर होगा, और अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो 2 डिफरेंट ऑर्डर्स मैट्रिसेस विल बी क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? देखो फिर हम वही लिखते हैं, यहाँ नंबर ऑफ रोज ले लेते हैं, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स ले लेते हैं, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ रो 1 लेता हूं तो कॉलम कितने लेने पड़ेंगे? 18। 1/18 will be the order, so that number of elements will be 18. If I'll take 2 rows, number of columns must be 9, so that elements will be 18. 3 rows, 6 columns. 4 हम नहीं ले सकते, 5 6 rows, then columns will be 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 directly 18. So that means इतने orders possible हैं, 1 2 3 4 5 6. So answer will be 6 different order matrices. 6 different order matrices are possible. क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये होगा। अगर 5 एलिमेंट्स होते, इफ 5 एलिमेंट्स आर देयर, फिर वैसे ही बिल्कुल, अगर 1 रो लेंगे देन 5 कॉलम्स विल बी देयर। 2 3 4 5 नहीं ले सकते, अगर 5 रोज लेंगे तो 1 कॉलम विल बी देयर। सो दैट मींस 2 डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 6, सेकंड पार्ट का आंसर 2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A equals Aij whose elements are given by, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट, हमको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। फर्स्ट देखते हैं, A is equal to 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, और इसमें कोई भी जनरल एलिमेंट Aij is given by I plus j square upon 2। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं। लेट A is equal to, अब 2x2 है तो 4 एलिमेंट्स विल बी देयर, A11 A12 A21 A22। ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने अज्यूम कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। अब एक रिलेशन हमको गिवन है ये वाला Aij वाला, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए Aij फाइंड करेंगे। Aij ये दिया हुआ है, तो A11 क्या होगा, I और j दोनों जगह 1 रखेंगे, 1 + 1 स्क्वायर अपॉन 2।
that is 1 plus 1 2, 2 square is 4, 4 upon 2 is 2. ये क्या आ गया A11, ये हमने फाइंड कर लिया. नाउ A12, A12 का क्या मतलब है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2. तो 1 plus 2 square upon, that is 1 plus 2 3, 3 square is 9, 9 by 2. ये भी आ गया. A21, अब I की जगह 2 and J equals 1, so 2 plus 1 square upon 2, that is 9 by 2. Done. ये हो गया. Last A22, so A22 will be I is 2 and J is also 2, so 2 plus 2 square upon 2, that is 4 square is 16 upon 2, that is 8. New elements. Therefore, in first case, matrix A will be 2, 9 by 2, 9 by 2 and ये होगा आंसर फॉर केस. कोई डाउट, समझ आया? सिमिलरली अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस, यहां पे ए आई जे क्या गिवन है हमको, आई अपॉन जे. क्लियर? तो फिर से 2 by 2 मैट्रिक्स है तो हम ऐसे ही करते हैं जैसे ये मैट्रिक्स है. ठीक, तो A11 क्या होगा, I is 1, J is also 1, 1 upon 1, that is 1. Okay. A12 will be I is 1, J is 2. A21, now I is 2, J is 1, and A22 is 2 upon 2, that is. So in second case, matrix A क्या बन जाएगा, this will be 1, 1 by 2, 2 and 1. ये होगा सेकंड पार्ट का. समझ आया? सिमिलरली हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही. यहाँ पे A11 में 1 और 1 इधर, A12 में I की जगह 1, J की जगह 2, A21 में I की जगह 2, J की जगह 1, और A22 में I और J दोनों की जगह 2. क्लियर? इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ 3 by 4 मैट्रिक्स whose elements are given by these two. फिर देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस. हम फर्स्ट वाला देखते हैं. फर्स्ट, लेट मैट्रिक्स भी 3 by 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. दैट मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. सो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. ये होगा. This is matrix we have assumed of order 3 by 4. अब हमारा पर्पस है कि ये 12 एलिमेंट्स हमको फाइंड करने हैं. ठीक, अब ए आई जे है क्या, ए आई जे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे. यही है. तो A11 से शुरू करते हैं. A11 का मतलब सबको पता ही है, I is 1 and J is also 1. So -3 into 1 plus 1 mod. So -3 plus 1 is -2, mod of -2 is 2. So its value is 1. Now A12, in this case I is 1, J is 2. So -3 plus 2 is -1 and mod of -1 is 1. ये होगा. A13, -3 into 1, J is 3. So -3 plus 3 is 0. Next, A14,
is 1 by 2 minus 3 into 1 plus 4. So minus 3 plus 4 is 1. So it is 1 by A21 minus 3 into 2 plus 1. So minus 6 plus 1 is minus 5. Mod of minus 5 is 5. 5 upon 2. A22 1 upon 2 minus 3 into 2 plus 2. So minus 6 plus 2 is minus 4. Mod of minus 4 is plus 4. This will be 2. A23 is 1 upon 2 minus 3 into 2 plus 3. So minus 6 plus 3 is minus 3. Mod of minus 3 is 3. So this is 3 by 2. A24 is 1 upon 2 minus 3 into 2 plus minus 6 plus 4 is minus 2. Mod of minus 2 is 2. 2 upon 2, that is 1. ये होगा. फिर थर्ड रो में आते हैं. फर्स्ट ये पूरी रो कंप्लीट हो गई, ये रो कंप्लीट हो गई. थर्ड रो में आते हैं. नाउ A31, that means I is 3, J is 1. So 1 upon 2 mod of minus 3 into 3 plus 1. So it will be minus 9 plus 1 is minus 8. Minus 8 mod of 8 is minus 8 is 8. 8 upon 2, that is, ये क्या हो जाएगा 4. A32 1 upon 2 minus 3 into 3 plus 2. Minus 9 plus 2 minus 7. Mod of minus 7 is 7. 7 by 2. A33 1 upon 2 minus 3 into 3 plus 3. कितना होगा? Minus 9 plus 3 is minus 6. 6 upon 2, that is 3. A34, that is 1 upon 2 minus 3 into 3 plus 4. So minus 9 plus 4 is minus 5. So this is 5 by 2. ये होगा. क्लियर. इस तरह से हमने ऑल 12 एलिमेंट्स थर्ड रो भी हमने कंप्लीट कर ली. तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स क्या होगा? तो therefore final matrix will be, अब मैं यहाँ सबकी जगह एलिमेंट्स की वैल्यू रख देता हूँ. ठीक. Therefore final matrix A will be A11 is 1, A12 is 1 upon 2, A13 is 0, A14 is 1 by second row. Second row का first element 5 by 2, second element is 2, then 3 by 2, then 1. Third row 4, ये सारे एलिमेंट्स 7 by 2, 3 and 5 by 2. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. Here, so this will be the final answer for part. इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. सबसे पहले अज्यूम करो 3 by 4 मैट्रिक्स. उसके बाद जो भी एलिमेंट है जैसे A11 तो I की जगह 1, J की जगह 1, A12 I1 J2, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे. कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या है? फिर से ये है क्वेश्चन. मैट्रिक्स वही है 3 by 4. तो हमें करना क्या पड़ेगा? लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू
बिल्कुल वैसे ही 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A3। तो ये मैट्रिक्स बन गया ऑफ ऑर्डर 3/4। क्लियर? नाउ A11 क्या होगा? अब यहां इसमें I की जगह 1 और J की जगह 1, 2 into 1 minus 1 is 1। A12, 2 into 1 minus 2, 0। A13, 2 into 1 minus 3, minus 1। A14, 2 into 1 minus 4, that is minus 2। क्लियर? सेकेंड रो में आते हैं। A21 is 2 into 2 minus 1 is 3। A22, 2 into 2 minus 2, that is 2। A23, 2 into 2 minus 3 is 1। A22, A24, 2 into 2 minus 4, that is 0। Finally, थर्ड रो के एलिमेंट्स लिखते हैं। A31 is 2 into 3 minus 1, that is 5। A32, 2 into 3 minus 2, that is 4। A33, 2 into 3 minus 3, 3। and A34, 2 into 3 minus 4, that is, ये आ गया। तो फिर हमको एलिमेंट्स मिल गए। अभी सारे एलिमेंट्स उठा के हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो फाइनल मैट्रिक्स क्या होगा? देयरफॉर A will be equal to 1, 0, -1, -2, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2। ये होगा फाइनल। ठीक, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में आते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। x, y और z की वैल्यूज फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक, तो देखो ये मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं। अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो 4, 3, x, 5 दिस इज इक्वल टू y, z, 1, 5। हमको पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यूज चाहिए। x कहाँ है? ये है x। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू y। y कहाँ है? दिस इज y। इसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में पोजीशन ये, सो दैट मींस y इज इक्वल टू। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में चलते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें, यहां पे अगर हम एलिमेंट्स को देखते हैं फिर इक्वेट करते हैं। इक्वेट करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी? 6। यहां इसको इससे इक्वेट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेट करेंगे इससे, तो 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। और थर्ड वाला पार्ट ये xy इज इक्वल टू 8। सॉल्व कीजिए इसे और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहे हैं।
आंसर आ गए क्या? तो यहां से मैं कह सकता हूं 5 5 कैंसिल, z इज इक्वल टू 0. नाउ वन इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल 6, सेकेंड इज एक्स वाई इक्वल्स 8. इसे सॉल्व करना है. तो यहां से मैं कह सकता हूं y फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन दिस वी कैन से y इज इक्वल्स टू 6 माइनस, और इस वैल्यू को उठा के मैं इस इक्वेशन में रखता हूं, इन इक्वेशन नंबर 2. So x into 6 minus x is equal to 8. So this will become 6x minus x square equals 8. और हम कह सकते हैं x square minus 6x plus 8 is equal to 0. Now this is quadratic equation. Middle term break हो रहा है क्या? Minus 4x minus 2x. So x square minus 4x minus 2x plus 8 is equal to 0. ऐसे होगा. So x into x minus 4 minus 2 into x minus 4 is equal to 0. So x minus 4 into x minus 2 is equal to 0. That means x is equal to 4 comma 2. Clear? अब हमारे पास क्या है? y ये था, y is 6 minus x. Clear? So when x is 4, y will be 6 minus 4, that is 2, and when x is 2, y is equal to 6 minus 2, that is 4. ये दो सॉल्यूशन हमको मिलते हैं. So when x is 4, y is 2. When x is 2, y is 4. So these are the two answers, and value of z is equal to 0. Value of z is 0. So this is the solution. So we can say solution is z is equal to 0, and x is 4, y is 2, or x is 2, y is 4. Clear? Okay. Next, solve third question. दिस वन x प्लस वाई प्लस जेड, अगर हम इक्वेट करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है? 3/1. इसका ऑर्डर भी 3/1. इक्वेट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ही एलिमेंट है, इसकी वैल्यू 9 के इक्वल होगी. x प्लस जेड विल बी इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड विल बी इक्वल टू 7. इक्वेशन 1, 2 एंड 3. 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करना है. ठीक है, सॉल्व कर लें. क्या होगा? देखो, ये x प्लस जेड है, ये x प्लस वाई प्लस जेड है. अगर मैं 1 में से 2 को माइनस करता हूं तो x माइनस एक्स कैंसिल, z माइनस जेड कैंसिल. क्या बचेगा? y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, दैट इज क्लियर. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4. अब सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट में इसमें से इसको माइनस कर दूं, 1 माइनस 3, तो देखो ये y प्लस जेड है, यहां भी y प्लस जेड है, ये y प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 9 माइनस 7, दैट इज 2. तो x इज इक्वल टू 2. y आ गया 4, x आ गया 2. अब इस x की वैल्यू और क्या बच गया? z चाहिए. तो यहां इस इक्वेशन में अगर मैं x को 2 रख दूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 z is equal to 5 minus z is equal to 5 minus x. So 5 minus 2, that is क्या आ गया? So therefore required solution is x equals to y equals 4 and z equals 3. थर्ड पार्ट का आंसर. आगे चलते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन. ये फिर वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे है. ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? -1. 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा? 5. 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5. 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 0. 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0.
और ये 3c plus d will be equal to 13. 3c plus 2 plus d equals 13. So these are the four equations 1, 2, 3 and 4. इसे सॉल्व करना है, ABCD की वैल्यूज लानी। अब देखो सिंपल है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को देखूं तो क्या दोनों में A और B इन्वॉल्व है। टू इक्वेशंस टू अननोन्स सॉल्व कर ले। अगर मैं फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करता हूं क्या आएगा, a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0। तो ये a माइनस बी माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a minus 2a is minus a, minus a equals minus 1, so that means value of a is a1 आ गया। अब अगर मैं इस a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूं, पुट इट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से b की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी को राइट साइड में ले जाते हैं, b हो जाएगा माइनस 1 इधर लाते हैं, तो b विल बी इक्वल टू a b मिल गए। अब c d और चाहिए। देखो ये इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, इस इक्वेशन को देखो, इसमें a और c इन्वॉल्व है। तो अगर मैं यहाँ a की वैल्यू रख दूं आई विल गेट c, सो put a equals 1 in equation 2. So 2 into 1 plus c is equal to 5. So c is equal to 5 minus 2, that is 3. c भी मिल गया हमको। अब इस c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ c and d इन्वॉल्व है। So put c equals 3 in equation 4। क्या होगा 3 into 3, so d is equal to 4. So answer is a is 1, b is 2, c is 3 and d is 4. ये है हमारा आंसर। क्लियर? अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। A इक्वल्स aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। इफ कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कब होता है, जब इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, दैट मींस m मस्ट बी इक्वल टू n। तो m और n अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? हमसे पूछा गया है ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल किन वैल्यूज ऑफ x and y के लिए होंगे। तो अगेन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं 3x plus 7 is equal to 0, equating corresponding elements 3x plus 7 is equal to 0. So that means x is equal to minus 7 upon 3. X is equal to minus 7 upon 3. Clear? इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये जो 5 है, this 5 is equal to y minus 2, so 5 equals y minus 2, that means y is equal to 7। यहां से आते हैं y plus 1 will be equal to this 8, so y plus 1 is equal to 8, that means y is equal to 7। यहां से भी y कितना आया 7, और ये 2 minus 3x will be equal to 4, 2 minus 3x equals 4, that means 3x is equal to
2 minus 4 that is minus 2, so x is equal to minus 2 by 3. अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास एक x की वैल्यू ये है और सेकेंड केस में x की वैल्यू ये है, जबकि y की वैल्यू दो जो है जहां जहां से भी आई वहां सेम थी. तो y is 7 but as x has different values at different places, therefore it is not possible to find. Hence this will be the option. आंसर तब होगा जब सब जगह से, जितने भी जगह एलिमेंट्स में x इन्वॉल्व है, सब जगह से वैल्यू अगर सेम होती है तो ही वो आंसर होगा. जैसे y हमने जहां जहां से भी कैलकुलेट किया सब जगह से 7 आया तो y is 7, बट x यहाँ 7 minus 7 by 3 आ रहा है, यहाँ minus 2 by 3 आ रहा है, दोनों जगह अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, which is not possible, क्योंकि जब भी हम x की वैल्यू रखेंगे तो जहां भी रखेंगे सब जगह सेम वैल्यू रखेंगे, बट सेम वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करती. Hence it is not possible to find values of x and y. Last question. The number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is. देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. जनरली 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3. देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 by 3. तो 3 by 3 अगर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 rows and 3 columns will be there. 3 rows and 3 columns, that means total 9 elements will be there. Okay. Now each element can be either 0 or 1. इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है. That means each place, there are total 9 places. Each place can be filled in 2 ways. Each place can be filled in 2 ways. Total places, how many places are there? Total 9 places are there. Total 9 places are there. And each is to be filled in 2 ways. Either 0 or 1. तो यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे. देयरफॉर जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लास्ट ईयर पढ़ा था, यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या था कि अगर 9 प्लेसेस हैं, हर एक को 2 वेज से फिल कर सकते हैं. देयरफॉर टोटल पॉसिबल ways will be 2 into 2 into 2. How many times? 9 times. So answer will be 2 to the power of 9, and 2 to the power of 9 is equal to 512. So correct option is 5. समझ आया? इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. अगर 0 और 1 और 2 कह देते, मतलब अगर हम 3 प्लेस वेज से फिल कर पाते तो सब जगह 3 3 3 3 3 3 वेज होते तो 3 to the power 9 आ जाता. क्योंकि यहाँ सिर्फ 0 और 1 ही कहा है, 2 वेज से ही फिल कर सकते हैं 9 प्लेसेस को, इसलिए 2 2 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 9 टाइम्स. सो आंसर इज 5 1. So here this is end of exercise 3.1. होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है then kindly like it, comment on it, share it and subscribe our YouTube channel Ankit Classes. And please don't forget to press the bell icon to get further notifications. Thank you. बहुत जल्दी हम आगे के सेशंस भी रिलीज करने वाले हैं. सारी एक्सरसाइजेज आपको वीडियो फॉर्म में इसी तरह मिलेंगी. क्लियर? अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.